Myself Manish Kumar Nayak. Hope you all are doing good. Please be careful in this pandemic situation. So let's start our fourth part of General Science MCQ series lecture. Okay. So let's discuss first answers of the part 3 quiz questions. So our seventh question of quiz part is which one of the following atmospheric layer absorb ultraviolet rays of the sun? So answer is D, ozonosphere. Here you can see the image also. It is divided in our atmospheric layers are divided into 5 parts, that is 5 troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay, exosphere also known as ionosphere. Okay, so sometimes questions are coming guys like that कौन से लेयर में एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है. So you can see aeroplanes are flying in the troposphere and satellites are revolving around the earth on the ionosphere or exosphere. Okay, and here the distance are also given as per the layers. Okay, so try to memorize this image. So our eighth question is, a jug is filled to the brim with water at 0 degrees Celsius. A piece of ice floats in it. The moment the ice melts, वाटर लेवल इज़ अनचेंज्ड. सो बी विल बी द आंसर. ठीक है, जब वाटर अगर कोई वाटर में आइस है वो मेल्ट हो गया तो क्या होगा, वाटर लेवल अनचेंज रहेगा. नाइन्थ क्वेश्चन इज, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय sulfur dioxide and nitrogen dioxide. So answer will be B. See here I had shown the animation also. So see how the gases are coming out and they get mixed with the rainwater and forming the acid rain. So let's start with our MCQ series. Our 84th question is, the point where the rays from a point object meet after reflection through a lens is called A, focus, center of curvature, C is optical center और D image point. तो कहाँ पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, जहाँ रे मीट करता है उसको बोलते हैं A, focus. So 86th question, the length of a wire is doubled and the radius is doubled. By what factor does the resistance change? So we know that R is equal to rho L by A. Okay, R क्या है, रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी एंड A is the L is the length of the wire और A and A is the area of cross section of the wire. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लेंथ को 2L कर दिए और एरिया का जो है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर. तो आर इज इक्वल टू पाई आर, यहाँ 2 टाइम्स हो गया तो 2R स्क्वायर. ठीक है सुन गाइस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी हाफ एस लार्ज. डी एज द आंसर. 87th क्वेश्चन इज, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, बी इलेक्ट्रिक पावर, सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और डी चार्ज. सो ऑलरेडी वी हैड डन दिस क्वेश्चन, सो सी इज द आंसर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So our next question is, an electric bulb is filled with hydrogen, B oxygen and hydrogen, C ammonia or D nitrogen and argon. So answer will be nitrogen and argon. Our 89th question is, the unit of resistivity is, okay, so the unit of this rho resistivity. Okay, so already we know that resistance unit is ohm. Okay, so area will come this side, length will go this side. So our unit of resistivity will become ohm meter. So C is the answer. 90th question is, if a wire is stretched to make its length 3 times, its resistance will become. Okay, तो क्या होता है गाइस कि अगर आप लेंथ को 3 टाइम्स कर देंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करिए, इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए. सो आर विल बी रो, एल विल बी 3L एंड एरिया विल बी A by 3. सो दिस 3 will go up and 3 3 is 9. So answer will be C, 9 times. So 91st question is, the resistivity of a wire depends on.
तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन, सो आंसर विल बी सी, मटेरियल. So our next question is, which of the following does not represent Ohm's law? ठीक है, तो ओम का लॉ का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू आई आर. तो हम इस फॉर्मूला को V बाई आई इक्वल टू आर भी लिख सकते हैं, या फिर आई बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई आर भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस. सो हम क्या नहीं लिख सकते हैं? डी नहीं लिख सकते. ठीक है, डी इज नॉट पॉसिबल. सो आवर आंसर विल बी डी, करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस टू पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज रॉन्ग. नाउ 93rd क्वेश्चन इज, फ्लेमिंग्स राइट हैंड rule is used to find the direction of the alternate current, direct current, induced current and actual current. So answer will be here C, induced currents. Okay, तो आपने सुना होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे. सो रिमेंबर दैट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या फाइंड करने के लिए काम आता है? डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. 94th क्वेश्चन इज, the unit of electrical power is, already we had discussed, so answer will be B. Now you can see here Fleming's left hand rule and Fleming's right hand rule. So first point is very important here. So this rule, Fleming's left hand rule, used to determine the direction of magnetic force, and Fleming's right hand rule is used to determine the direction of इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या फाइंड करने होता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. एंड राइट हैंड रूल किस चीज़ को फाइंड करने के लिए होता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो गो थ्रू दिस चार्ट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ 95th क्वेश्चन इज, द रेजिस्टेंस ऑफ the human body in dry condition is of the order of A 10 power 1 ohm, B 10 power 2 ohm, C 10 power 3 ohm or D 10 power 4 ohm. So remember this value. So answer will be here D 10 power 4 ohm. Our next question is, certain substances lose their electrical resistance completely at super low temperature. Such substances are called. ठीक है, कुछ हमारे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जो -100 डिग्री सेल्सियस या उसके नीचे जाने से क्या होता है? उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है. तो उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज ए सुपर कंडक्टर्स. नाउ 97th क्वेश्चन इज, फ्यूज वायर इज मेड ऑफ A platinum, B copper, C aluminium, D alloy in tin and lead. तो फ्यूज वायर किस चीज़ का बना रहता है? दैट इज D alloy in tin and lead. Actually nowadays examiners are asking this type of questions. Okay, so they will give you an alloy and they will ask the composition of that alloy. Okay, so try to remember some important alloys. Okay, I think we had already discussed one chart in regarding this. So our 98th question is, which of the following terms does not represent electric power in a circuit? Okay, so guys, जैसे कि मुझे याद है एक फार्मूला इलेक्ट्रिक पावर का P इज इक्वल टू वी आई. अगर आपको एक भी फार्मूला पावर का याद है तो आप बाकी चीज़ डिडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे P इज इक्वल टू वी आई मुझे याद है. अब मुझे पता है कि V इज इक्वल टू आई आर जो होता है ये आपका ओम्स लॉ का फार्मूला होता है. तो V इज इक्वल टू आई आर, B के जगह आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए आई आर, तो आंसर विल बिकम ए इज इक्वल ए आई स्क्वायर आर. ठीक है, और P इज इक्वल टू वी आई ऑलरेडी आई नो. ठीक है, अब क्या करिए, I को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, I इज इक्वल टू V बाई आर. तो आप जब इस I को सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो आंसर विल बिकम D V स्क्वायर बाई R. Okay, so our answer will be B because it has asked not represent. Okay, so our answer is IR square. Now 99th question is, ampere second stands for the unit of
ए पावर, बी चार्ज, सी ईएमएफ और डी एनर्जी। सो एम्पेयर सेकेंड किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डी एनर्जी। नाउ 100th क्वेश्चन इज कूलम्ब इज इक्वल टू, नाउ कूलम्ब इज इक्वल टू ए 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, 1 एम्पेयर पर सेकेंड, 1 जूल इंटू 1 एम्पेयर और 1 जूल पर सेकेंड। सो आंसर इज ए 1 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपको कूलम्ब का डेफिनेशन पता होगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका यूनिट क्या है या फिर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो कूलम्ब का क्या होता है? इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। 101st क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, तो ये बहुत घुमाने वाला क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी हमने देखा है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। ठीक है, तो इस रो को हमने क्या बोला था? रेजिस्टिविटी। तो इस रेजिस्टिविटी को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्म यूनिट क्या होता है? बी ओम सेंटीमीटर। ओके, ओम सेंटीमीटर, ओम मीटर, वट एवर यू कैन से। सो हियर दे हैड गिवन ओम सेंटीमीटर, सो यू हैव टू टिक ओम सेंटीमीटर. Now 102nd question is the unit of electrical conductivity, ohm per centimeter, ohm centimeter, ohm per second or mho. So answer will be D, mho. Now 103rd question, the filament of an electric bulb is of tungsten because A it's cheaper, A its resistance is negligible, B it is cheaper, C its melting point is high और D filament is easily made. So टंगस्टन क्यों बना रहता है? क्योंकि आंसर इज C, its melting point is high. Now 104 question, the resistance of a thin wire in comparison to a thick wire of the same material, ठीक है, is low, is equal, depends upon the metal of the wire or is high. सो आंसर इज हाई. क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा, जैसे दैट इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? थिन वायर का, तो थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा. सो आंसर इज डी. नाउ 105th question is the resistance of an ideal voltmeter is 0, very low, very large or infinite. So answer is very large. Which of the following is thermosetting plastics? So options are polyvinyl chloride, A polyvinyl chloride, B polyester, C polypropylene or D bakelite. So answer will be D, bakelite. We will discuss about this thermosetting plastic in next slide. Okay. Now 107 is polycot is obtained by A polyester and cotton, B polyester and wool, C cotton and wool and D none of this. So answer will be A polyester and cotton. Now 108 is which of the following is the which of the following is the maximum number of electrons that can be present in M cell. देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है गाइस, सो इसके न्यूक्लियस का चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमती है. ठीक है, तो जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं के, दूसरा सेल जो होता है उसको बोलते हैं एल, तीसरा को बोलते हैं एम. ठीक है, इस तरह के एल एम एन हो गया. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो तीसरा सेल है, जो एम सेल है, उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं? 2n². तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? m के लिए 3 है, तो 3 × 3 9, 9 2 जा 18. सो आंसर विल बी 18. सो आवर हियर आंसर विल बी C, 18. See here we had discussed about the plastics. So there are two types of plastic. One is thermoplastic and second is thermosetting plastics. Okay, so important is first point is important. A long straight chain carbon compound होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है क्रॉस लिंक्ड होता है. क्रॉस लिंक्ड होने की वजह से क्या होता है? ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये थर्मोप्लास्टिक्स जो होता है
वो वीक होता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये जो थर्मोप्लास्टिक है कैन बी प्रोसेस्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है, उसको फिर से प्रोसेस करके यूज़ किया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है उसको दोबारा प्रोसेस करके यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी और होती है, और इट विल बी नियर टू इम्पॉसिबल टू यूज़ दैट प्लास्टिक। ओके, नाउ हियर यू कैन सी सेल। ओके, जो पहला सेल के है, दूसरा सेल एल है, थर्ड सेल जो होता है एम होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, सेकेंड, ये थर्ड। तो जैसे एम का वैल्यू क्या होता है, थर्ड, सो 2n²। ओके, दिस इज़ द फार्मूला। नाउ वन मोर थिंग, आपने जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुना ही होगा केमिस्ट्री में, उसको कैसे लिखते थे हम लोग, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। लाइक इस तरह का हम सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको किस किस बेसिस पे बनाते हैं इसको, हम लोग इसको अफबाहु प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। और इसका एक मतलब किस प्रिंसिपल पे डिपेंड है, इंक्रीजिंग एनर्जी, नीचे जैसे जाते जाएंगे उसका एनर्जी इंक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दिस वन, सो ट्राई टू रिमेंबर। नाउ वन नॉट नाइन्थ क्वेश्चन इज इन एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 एटम्स आर यूनाइटेड बाय। ओके, जब भी आप ऑक्सीजन का फार्मूला लिखते होंगे O2 लिखते होंगे, ठीक है। तो O2 का फार्मूला क्या, O2 कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कौन से बॉन्ड से, वो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, 2 बॉन्ड्स। तो 110th क्वेश्चन इज द इनर्ट गैस विच इज सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। जो ब्रीदिंग के लिए डीप सी डाइवर्स यूज़ करते हैं, उसमें नाइट्रोजन की जगह कौन सा गैस यूज़ कर रहे हैं अभी, नाउ दे आर यूजिंग हीलियम विद द ऑक्सीजन। नाउ ये 111th क्वेश्चन इज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन 92U238 एटम्स। ओके, सो ये जो 92 नंबर है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, जैसे आपको पता होगा न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहते हैं, टोटल नंबर ऑफ, तो प्रोटॉन्स जितना होता है और ये टोटल नंबर दोनों का होता है, उससे इसको प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। यू कैन सी हियर आई इट्स ऑन इन द फिगर ऑल्सो। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 238 माइनस 92, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज हियर हाउ मच, 146। नाउ 112th क्वेश्चन, पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑन बर्निंग गिव फ्यूम्स ऑफ A HCl, B chlorine, C hydrogen, or D none of these. So answer will be A HCl. Now we had completed our MCQ part of the MCQ part. So let's discuss the booster charts. So first booster chart is about the blood group, and next chart. सो ब्लड ग्रुप में आप देख सकते हैं, सॉरी गाइस, तो ए बी देख सकते हैं किसको डोनेट कर सकता है, सो सो हियर ए बी इज़ द यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड ओ इज़ द यूनिवर्सल डोनर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट चार्ट, दैट इज़ विटामिन ए इज केमिकल नेम रेटिनॉल। ओके, एंड डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है, ज़ेरोफिथालमिया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, मीन्स हर एक एग्ज़ाम में means I had seen in all exams mostly they are asking at least one question from this chart. Okay, so mostly they will ask the chemical name or deficiency. Okay, so vitamin A का chemical name क्या है, retinol. vitamin B1 का chemical name क्या है, thiamine, and what is the deficiency disease, beriberi. vitamin B2 का क्या है, riboflavin, and इसका जो deficiency disease क्या है, एरिबोफ्लेविनोसिस। Now continuing the same chart, so vitamin B3 is nicotinic. Okay, उसका deficiency disk है pellagra. Similarly B12 vitamin C very important, chemical name ascorbic acid, and deficiency disease scurvy, very important guys. Okay, and vitamin D rickets, ठीक है। विटामिन डी का एक और सब इम्पॉर्टेंट है कि दैट इसका सोर्स क्या है, सनलाइट है। देन विटामिन के का एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। ओके,
So let's do the quiz questions. So first question is, iodine test is used to detect protein, fat, cholesterol, carbohydrate. And 11th question is, which of the following is used in pencils? A. Sulfur, B. Phosphorus, C. Charcoal, D. Graphite. And our 12th question is, the rusting of metal iron in air needs both A. Carbon dioxide and moisture, B. Water and paint, C. Oxygen and grease, and D. Oxygen and moisture. So I will give the answer of this question in the next part. Okay, so hope guys you like the video. So if you like the video, then please click the like button और चैनल को सब्सक्राइब करें, so that you can get the update of new videos or the next part of this general science MCQ series. Okay guys, so thank you, bye.